Dear students, in class 8 biology, today I am going to teach you the last topic of the chapter crop production and its management, and the topic is the crop improvement. Crop improvement, it is also a agriculture practices. All the previous agriculture practices like the preparation of the soil, sowing the seed, soil replenishment, irrigation, crop protection, harvesting and storage. These practices, if followed properly, that help in increasing the production of the grains. तो ये सभी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे ग्रेन्स का, अन्न का उत्पादन। ये अगर सभी हम कृषि के जितने भी प्रैक्टिसेज हैं उनका पालन करते हैं सही तरह से, तो हमारा अन्न का प्रोडक्शन बढ़ेगा। Dear students, you know that the population of India growing fast, and our country has the second largest populated country of the world, and its population is near about 1.35 billions. So if the population increases, the demand of the food also increases. To meet the demand of ever increasing population of the India, इस भारत की बढ़ती हुई आबादी की डिमांड को पूरा करने के लिए, and to the freed every citizen of India, a revolution was brought about in India in the 1960s. Yes, मैंने भारत की बढ़ती हुई आबादी, और इस बढ़ती हुई आबादी में हर एक भारतीय को अनाज की सप्लाई के लिए, अनाज पाने के लिए 1960 के दशक में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, एंड दिस वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। एंड दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन was generally happened in the high yielding dwarf varieties of the Mexican wheat. ये dwarf variety, गेहूं की dwarf variety थी, Mexican dwarf varieties, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला, and that were introduced in the India, भारत में हुआ। यानी भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ वह 1960 के दशक में ये गेहूं की मैक्सिकन ड्वार्फ वेराइटीज़ में हुआ, एंड दीज वेराइटीज वेयर रेसिस्टेंट टू द पेस्ट, डिजीज एंड लॉजिंग। ये जो वेराइटीज थी वह किसका रेसिस्टेंट थी, पेस्ट का, विभिन्न तरह के जर्म्स का, डिजीज का, और लॉजिंग। About lodging, earlier we have studied lodging. When untimely rainfall takes place and strong winds blow, they are responsible for the falling of the crops before the maturation stage, and these generally affect the quality and quantity of the yield. असामयिक वर्षा और बहुत तेज हवा फसलों को, खड़ी फसल को गिरा देती है, जिससे फसल का उत्पादन बहुत बड़ा प्रभावित होता है। Yes, just I have told you the green revolution, the great increase in the yield of the food grains, and especially that is in the wheat dwarf Mexican varieties,
and during the 1960s is called the Green Revolution. Dr. Norman E. Borlaug was the first scientist behind the Green Revolution, as he developed the high-yielding triple dwarf Mexican wheat varieties. Their color was changed to the Indian liking through the gamma irradiation. Green Revolution has made the country self-sufficient in the food, increased the buffer stocks of the food grains, and improved the economic condition of the farmers, as well as the provided employment opportunity to large number of the people. Another thing, the crop improvement. Sometimes generally question arises in the student's mind, what are the objectives of the crop improvement? There are many objectives. First is the higher yield, second is the improved quality, third is the biotic and abiotic resistance, change in the maturity duration, desired agronomic traits, like if we grow the short plant, what will, जैसे dwarf varieties develop की गई, तो dwarf varieties will be the strong. There is no effect of the lodging का कोई effect नहीं होगा, means this will be the resistant to the lodging, and they require less amount of the nutrients. So this is the desired agronomic traits and wider adaptability. The another way of the improving yield is by developing the new varieties of the crop, and this can be done by the cross breeding of the two different varieties. तो ये दूसरा क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मेथड है जिससे नई वेराइटीज़ क्रॉप्स का डेवलप किया जाए, और इसमें क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा ये संभव हो पाता है। दो वेराइटीज़ के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है। इस फिनोमेनन को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम क्रॉस ब्रीडिंग भी है। और हाउ वी कैन से the crop improvement by developing the better varieties of the crops, plants, and this is known as the hybridization. And in order to obtain the improved varieties, the following steps should be taken. जैसे टू वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स से ए एंड बी, दो प्लांट की वेराइटीज लेते हैं ए और बी, ऑफ द डिजायर करेक्टरिस्टिक्स, जो हम करेक्टर्स उसमें चाहते हैं उनके करेक्टर्स को चुन लेते हैं। एंड एंथर फ्रॉम द प्लांट ए आर रिमूव्ड, प्लांट ए का एंथर को रिमूव कर देते हैं जो कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इमास्कुलेशन। मीन्स फ्लावर से एंथर को रिमूव करना ही इमास्कुलेशन कहलाता है। एंड एंथर फ्रॉम द प्लांट बी आर टेकन, और बी प्लांट के एंथर को लिया जाता है, और एंथर जनरली कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स, और इट्स पोलन आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा ऑफ ए। प्लांट ए के जो एंथर को हमने हटा दिया था उसके स्टिग्मा पर जो प्लांट बी के एंथर से पोलन ग्रेन्स को डस्टिंग कर दी जाती है, और उसके साथ साथ जो स्टिग्मा जो ए है इसको कवर कर दिया जाता है पेपर बैग से। और इसके द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बाय सच क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द टू डिजायर्ड वेराइटीज़ द सीड्स ऑफ द हाइब्रिड वेराइटीज़ कैन बी ऑब्टेन। हाइब्रिड वेराइटीज़ प्रोड्यूस की जाती है
संकर प्रजाति, एंड दिस वर्क इज़ डन एट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। ये कहाँ किया जाता है? एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में। एंड दीज हाइब्रिड सीड्स आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स, और इस वेराइटीज़, हाइब्रिड वेराइटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसानों के पास। जस्ट हमने देखा कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इम्प्रूव वेराइटीज़ बाय द hybridization, we have taken the step. First step is the choice of the parents. Two older varieties of the crops having the different desirable characteristics are selected. For example, if you want to obtain a variety having the higher yield as well as the disease resistant, अगर ऐसा प्लांट हम ग्रो करना चाहते हैं जो ज़्यादा प्रोडक्शन करे और डिजीज़ से लड़ने की क्षमता भी हो, तो वी शुड सेलेक्ट द टू एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ ऑफ द क्रॉप्स। तो दो वेराइटीज़ हम क्रॉप्स का चुनते हैं, इसमें वन हैविंग द हायर यील्ड एंड अदर हैविंग द मोर रेसिस्टेंट टू द डिजीज़। सेकेंड अब क्या करते हैं उसके बाद, जैसे क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द टू पेरेंट्स। pollen grains of the plants of the one varieties are dusted over the stigma of the plants of the other varieties। एक प्लांट के pollen grains को दूसरे varieties के स्टिग्मा पर छिड़काव करते हैं, या इसका ठीक वाइस वर्सा उल्टा भी कर देते हैं। It produces a new varieties which has the good characteristics of the both parents। इससे जो हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस होती है वो दोनों के करेक्टर को उसमें समायोजित करके रखता है। द प्रोसेस ऑफ द क्रॉसिंग प्लांट्स ऑफ द टू वेराइटीज़ हैविंग द डिफरेंट ट्रेड्स टू प्रोड्यूस ए hybrid having the good traits of the both is called the hybridization। and the crossing may be intervarietal। ये इंटरवेराइटल क्रॉसिंग भी हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन। इंटरवेराइटल मीन्स होता है बिटवीन द डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में हम इसको क्रॉस कराएं, या इंटरजेनरिक बिटवीन डिफरेंट जेनरा, जीनस के बीच में क्रॉस कराएं, या इंटर स्पेसिफिक बिटवीन द डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द सेम जीनस। And the most common type of breeding is intravarietal। इंट्रावेराइटल जो होता है सबसे कॉमन ब्रीडिंग होता है, जिसमें विभिन्न वेराइटीज़ के बीच में ये कराया जाता है। अब उसके बाद आते हैं डू यू नो जीएम क्रॉप्स में होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स are the plants whose DNA has been modified using the various techniques of the genetic engineering। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका डीएनए को मॉडिफाइड किया जाता है विभिन्न टेक्निक से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की विभिन्न टेक्निक से। और इसमें जो दिस द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर द जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर so as to modify the latter। The food plants are called the genetically modified foods or crops, and here the DNA of these plants is modified to impart them the characteristics that are not naturally present in them। माने जेनेटिक डीएनए ऑफ दीज प्लांट्स को ऐसे मॉडिफाइड किया जाता है कि जो करेक्टर शो करते हैं वो नेचुरली करेक्टर पहले से नहीं होते हैं। एंड सच करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स में क्या हो सकते हैं, वो रेसिस्टेंट टू द पेस्ट, जो पेस्ट हैं जर्म्स ऑफ द डिजीज हैं उनका प्रतिरोधी, या डिजीज रेसिस्टेंट टू द डिजीज,
माने रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें होती है। लॉन्गर सेल्फ लाइफ, उनका लाइफ भी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। टॉलरेंस टू द वेरियस एबायोटिक स्ट्रेसेस, बहुत सारे एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं, तनाव होते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। एंड द नेम्स जैसे ऑफ द सम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर विटामिन ए रिच गोल्डन राइस। गोल्डन राइस है जिसमें विटामिन ए रिच मात्रा में होता है। प्रोटीन रिच पोटैटो और इंसेक्ट रेसिस्टेंट बीटी कॉटन, एक कॉटन की एक वैरायटी है। बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स which carries the bacterial genes that protects the crop plant from the insect, and about 200 genetically modified crop varieties have been developed by now with the help of this technique. In this way, just I have finished the last topic of this chapter, crop improvement, and for the growing fast population of the country or the world, we can fulfill the demand of the every citizen of our country. And here just we have studied what are the objectives of the crop improvement. There are so many objectives. Higher yield, प्रोडक्शन को हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसके द्वारा। क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय द हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस ब्रीडिंग, और इसके द्वारा बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंट वेराइटीज भी डेवलप कर लेते हैं। और चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन, जो उनका परिपक्व होने की अवस्था है उसको भी हम कम ड्यूरेशन कर सकते हैं, ताकि हम साल में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप या फसलें लगा सकें, प्रोडक्शन बढ़ा सकें। एंड डिजायर द एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, जो एग्रोनॉमिक ट्रेड्स हैं, जैसे कि हमने कहा अगर ड्वार्फ वैराइटीज हम उत्पन्न डेवलप करते हैं तो उसके द्वारा उसको लेस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी और वह ज़्यादा प्लांट्स क्या होगा, क्रॉप्स क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्गर होगा। और मोर स्ट्रॉन्गर होगा तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द लॉजिंग और अनटाइमली रेन्स और स्ट्रॉन्ग विंड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्लांट्स नेवर फॉल ड्यू टू दिस। एंड वाइडर एडाप्टेबिलिटी, और ऐसे हाइब्रिड वेराइटीज़ को या इम्प्रूव वेराइटीज़ को क्या होगा कि जो नया वातावरण है उसमें वो अच्छी तरह से अडॉप्ट कर जाएगा और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो दिस इज अबाउट द होल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट फ्रॉम माय साइड इन क्लास 8 बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, you like, subscribe and press bell icon to my channel. That's all today from my side in class 8 biology. इतना